हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई हैव prepared a new video for you all, and this video is very important for the concept of the contract of indemnity. This contract of indemnity, if you see the word indemnity, it looks peculiar, but the meaning is very simple. So I advise you, don't afraid of with the meaning of or the pronunciation of indemnity. This contract of indemnity is very easy, and if you listen it carefully, then you will enjoy in listening, and it is very easy to understand. Contract of indemnity. This contract of indemnity actually is part of the Indian Contract Act, and the section of the Indian contract for the contract of indemnity is 124 and 125 of Indian Contract Act 1872. This word indemnity actually talks about the thing which I am going to tell you in detail now, and we will be talking about the meaning of this act and the rights of indemnity holder in this video. See, the section 1 to 75 is part of the Indian Contract Act 1872, while the section 76 to 123, it is the part, it explains, these sections explains about Sales of Goods Act 1930. Although this contract of Sales of Goods Act 1930 was in previous time, it was the part of the Indian Contract Act 1872, but after some time, when this act, Sales of Goods Act, was alooed from the Indian Contract Act, and it became a separate act which is known as now Sales of Goods Act 1930, and it covers the section from 76 to 123, meaning from section 1 to 75 are the part of Indian Contract Act. Then from section 76 to 123, it is Sales of Goods Act, and then again from section 124 and 125 are confirmed for contract of indemnity. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेशल पार्ट भी कहते हैं. आई रिपीट दिस लाइन अगेन. हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है, इसको हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पार्ट भी कहते हैं. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? देखिए यहां पर आप देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी टॉक अबाउट टू मेक गुड द लॉस. आई रिपीट, टू मेक गुड द लॉस. एंड व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कंपनसेट फॉर द लॉस. आई रिपीट, कंपनसेट फॉर द लॉस. मीनिंग अगर किसी का लॉस हुआ है, उसको गुड, उसको अच्छा बनाना. अब लॉस को आप अच्छा कैसे बनाते हैं? अगर लॉस हुआ है और उसको आप अच्छा कैसे बनाते हैं? मीनिंग बाय कंपनसेटिंग दैट लॉस. उस लॉस को कंपनसेट करके आप उसको अच्छा बनाते हैं. तो हियर इन दिस एक्ट which is being covered under the section 124 and 125 of Indian Contract Act, there are the two parties, indemnifier and the indemnity holder. देखिए यहां लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, देयर आर टू पार्टी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर. दिस इंडेमनिटी होल्डर इज ऑल्सो नोन एज इंडेमनीफाइड, मीनिंग in
to indemnity holder, either we can talk to this party, to this person, to this individual or the group of individual, either the indemnity holder or indemnified. We have two parties here, indemnifier and indemnity holder. आगे चलते हैं. Here I'm trying to explain you this meaning of indemnifier or the indemnity holder with the help of an example. The example is written here. Indemnifier confirms guarantee that if because of him or others action indemnity holder suffers loss, it will be compensated by indemnifier. What does it happen? क्या होता है यहां पर? एक प्रॉमिस, एक बंदा एक प्रॉमिस करता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रॉमिसर. द अनदर वन इज प्रॉमिसी. वो प्रॉमिस करता है और किस चीज के लिए प्रॉमिस करता है? जो कि हमने पिछले स्लाइड में भी बात किया था. ही टॉक्स अबाउट व्हाट? ही टॉक्स अबाउट टू मेक गुड द लॉस. अगर किसी पार्टी का, किसी इंडिविजुअल का, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी कंपनी का कोई लॉस होता है तो उसको गुड किया जाता है, मीनिंग उसको कंपनसेट किया जाता है. तो जो पार्टी कंपनसेट करती है उसको इंडेमनीफायर कहा जाता है, और जिसके लॉस को गुड किया जाता है, मेकिंग गुड ऑफ द लॉस, और द कंपनसेटिंग पार्टी इज द इंडेमनिटी होल्डर. ओके. आप देखिए, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताने की कोशिश की है. दो पार्टी है, प्रोमिसर और प्रोमिसी. प्रोमिसर को हम इंडेमनीफायर कह रहे हैं, प्रोमिसी को हम इंडेमनिटी होल्डर बोल रहे हैं. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसी वाई, एक इंडिविजुअल है, उनका इंश्योरेंस किया, उनकी जनरल प्रॉपर्टी का, उनके हाउस का इंश्योरेंस किया, और इंश्योरेंस करने के बाद ये पोजीशन कैसी हो जाएगी? जिस इंसान, मिस्टर वाई, जिनका इंश्योरेंस किया गया है, उनके जनरल इंश्योरेंस किया गया है, देखिए ध्यान दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, उनकी जनरल प्रॉपर्टी, उनके हाउस का इंश्योरेंस किया गया है. तो जिस पार्टी का इंश्योरेंस किया गया है, ही इज नोन एज व्हाट? इंडेमनिटी होल्डर. और जिस कंपनी ने, यहां पर एक्स बोला गया है, एक्स ने उनका इंश्योरेंस किया है, इनको हम बोलेंगे इंडेमनीफायर. तो किस चीज का इंश्योरेंस किया गया है? यहां पर इंश्योरेंस किया गया है कि अगर प्रॉपर्टी ऑफ द वाई या उनका हाउस जिसका इंश्योरेंस किया गया है उसमें कोई डैमेज होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो टिल सम लिमिटेशन this indemnifier will compensate him, meaning Mr. X, which is a insurance company, will compensate to Y. तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे what does it mean of the indemnifier and the indemnity, and this relationship is known as contract of indemnity. This relationship is known as contract of indemnity. So what is, suppose in this example, this Y has his house has got fired and he had loss of 25 lakh rupees, and this 25 lakh rupees, under some condition, some provision of this act is, or the insurance company act, it is being compensated by the indemnifier, meaning by the act. Then the act is compensating 25 lakh rupees to Mr. Y. There is a relationship, there is a contract which is arising between of the X and Y, and that is known as contract of indemnity. ठीक है. अब जनरली टू पार्टीज आर फाइन, या थोड़ा इंग्लिश गड़बड़ हो गया है. जनरली टू पार्टीज आर फाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, indemnifier and indemnity holder, meaning a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of third party,
or conduct of any other person is called a contract of indemnity, and it is mentioned in section 124. बाकी दूसरे एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। दूसरे एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। हु इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट? say you see in this example, E has been appointed as an agent of D. D is known as principal, E is known as an agent, and this D has entrusted many jobs to E. और ये जब जॉब करते जो एजेंट है, अब एजेंट किसके लिए काम कर रहा है? एजेंट इज डूइंग द जॉब बट ही इज डूइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द डी। तो वॉट एवर प्रॉब्लम, वॉट एवर डैमेज, वॉट एवर थिंग्स, वॉट एवर प्रॉब्लम, वॉट एवर लॉस ही विल सफर, ई विल सफर, दैट विल बी borne by the D, and D is the principal. So who will be the indemnifier in this case? In the contract of the agency, principal will become the indemnifier, and the indemnity holder will be the agent, जिसका दूसरा नाम indemnified भी है। देखिए लिखा है द इंडेमनिटी बॉट इज मेड इन द फेवर ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, एंड हु इज द इंडेमनिटी होल्डर? ई इन दिस केस हियर, ई इज द इंडेमनिटी होल्डर while the D is the indemnifier। देखिए ई जो काम करता है वो सारे इंस्ट्रक्शन, सारे जितने भी डायरेक्शंस हैं वो डी के डायरेक्शन से करता है, और अगर कोई लॉस, कोई किसी तरीके का डैमेज ई को होता है तो वो ई को डैमेज अपनी विल की वजह से नहीं हुआ, अपने कंडक्ट की वजह से नहीं हुआ, वो किसकी वजह से हुआ है? वो डी के इंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। इसलिए यहां पर ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, आई रिपीट इट इज इम्प्लाइड। हमने पढ़ा है ना ऑफर दो तरीके के होते हैं, और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े हैं दो तरीके के होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो यहां पर इन दोनों पार्टी के बीच जो एक प्रोमिसर है प्रिंसिपल और प्रोमिसी है एजेंट, इनके बीच में हमारा एक क्या बन जाता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, and that contract comes under the contract of agency, and the relationship which is prevailing here, it is known as the what? It is known as the contract of indemnity। एक और एग्जाम्पल से हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल क्या बात करता है? देखिए एक सज्जन है ए, उन्होंने किसी कंपनी से के शेयर लिए, बी कंपनी से एक शेयर लिए, तो यहां पर ट्रांसफरर कौन हो गया? बी ने शेयर ट्रांसफरर किए तो ये ट्रांसफरर हो गए, ए को शेयर ट्रांसफर किए तो ये ट्रांसफर ही हो गए। आई रिपीट अगेन, एक कंपनी है, उसके शेयर खरीदे किसने? मिस्टर ए ने, और मिस्टर ए कौन हो गए? मिस्टर ए यहाँ पर आपके ट्रांसफर ही हो गए, और शेयर ट्रांसफर किसने किए हैं? ट्रांसफरर किए हैं बी ने। तो जो कंपनी है उसको हमने बी नाम दिया है, वो कंपनी बी नाम देने वाली यहाँ पर ट्रांसफरर हो गया, और जिसने शेयर लिए हैं जो शेयर होल्डर ने, वो कौन हो गए हैं? यहाँ पर ए। अब ए के शेयर क्या हुआ, इसका हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है। देखिए ए का क्या हुआ, ए का जो शेयर था वो उनसे खो गए, ही हैव लॉस्ट द शेयर, ठीक है, नाउ हैव लॉस्ट द शेयर सर्टिफिकेट एंड आस्क फॉर इशू ऑफ अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। जो शेयर्स थे वो ए से खो गए, और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने एक उन्होंने रिक्वेस्ट किया बी से कि आप मुझे शेयर की एक कॉपी दे दीजिए, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी दे दीजिए। अब डुप्लीकेट कॉपी कंपनी कैसे दे सकती है? कंपनी को थोड़ा डाउट है कि वो डुप्लीकेट कॉपी कैसे दे, तो डुप्लीकेट कॉपी देने से पहले उन्होंने ए से बोला, कंपनी ने ए से बोला कि आप हमें एक काम कीजिए, आप हमें एक बॉन्ड दे दीजिए, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? इंडेमनिटी बॉन्ड। आप हमें एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे दीजिए, और इस इंडेमनिटी बॉन्ड के बेस पे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं है ए ने वो शेयर बेच दिए हैं, बी कंपनी क्या सोचती है, ये बी कंपनी क्या सोचती है, कहीं ए ने वो शेयर बेच तो नहीं दिए हैं, या शेयर उन शेयर को लाके कल कोई दूसरी पार्टी अगर क्लेम करने लगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा उसकी वजह से कंपनी को कोई लॉस हो जाए। तो कंपनी बी ने ए से बोला कि आप हमें एक इंडेमनिटी बॉन्ड बना कर दें,
और उस इंडेमनिटी बॉन्ड के बेस पर क्या हो गया, अब जो ट्रांसफरी थे वो तो प्रोमिसर हो गए, मतलब पार्टी ए हैज बिकम द प्रोमिसर, एंड हु इज द प्रोमिसर नाउ, द कंपनी बी, जिसके शेयर्स हैं, जो शेयर इशू कर रही है, वो कंपनी आपकी कौन हो गई, जो ट्रांसफरर है वो कौन हो गए आपके, वो अब इस केस में आपकी हो गई प्रोमिसरी। तो कल को अगर कोई थर्ड पार्टी आता है और या उस शेयर की वजह से कोई इशू होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसकी जिम्मेदारी होगी ए की, जो कि ट्रांसफरी है। तो यहां पर हाउ मेनी पार्टी वी हैव इन दिस एग्जांपल, वी अगेन हैव टू पार्टी, indemnifier, A is the indemnifier and B is the indemnity holder or the indemnified। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहां पर हमने मेंशन किया है दी कंपनी बी, दी कंपनी, दी कम सॉरी, the company B asked A to furnish an indemnity bond in its favor to protect it against any claim that may be made by any person on the original सर्टिफिकेट शेयर। कल को कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आ जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसके लिए जिम्मेदार केवल यहां हमारे केस में कौन होगा, ए मतलब जो हमारा इंडेमनिटी फायर है, इंडेमनिटी फायर है। ठीक है, आगे बात करते हैं कितने तरीके का होता है कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। देखिए टाइप्स है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ इंडेमनिटी कितने तरीके के, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अभी मैंने पहले थोड़ी देर भी पहले भी बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के केस में, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप के केस में भी। हमने आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पहले भी बताया है, वीडियो में भी बताया है कि पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, ऑल पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट conduct like a the agent for other partners, and same time they behave like a principal for other partners। तो अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप है, तो वहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनर है, तो वहां पर हमारा कैसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा, वो इम्प्लाइड है, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया बाकी इंश्योरेंस कंपनीज का, वहां पर हमारा कैसा होगा, वहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होगा, और इसके लिए यहां पर आपको इंडेमनिटी बॉन्ड की जरूरत होती है। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है हमने। इफ इंडेमनिटी बॉन्ड इज सर्व्ड, ठीक है, जो हमने बात किया, घर जल जाता है तो उसके लिए जनरल इंश्योरेंस करा लिया मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से, या वट एवर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से, और वाइस वर्सा। तो वहां पर जहां पर आपको इंडेमनिटी बॉन्ड जरूरत होती है उसको हम एक्सप्रेस कहते हैं, एक्सप्रेस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जहां पर इम्प्लाइड होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में, तो वहां पर हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अबाइडिंग ओनली फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली चीज है, ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बोलते हैं कि हम एक प्रॉमिस करते हैं बी से कि आप सी का मर्डर कर दीजिए, ए बोल रहे हैं बी से कि आप सी का मर्डर कर दीजिए, और मर्डर करने के बाद अगर पुलिस विल कैच यू, तो जो भी इशू आएगा केस फाइल करने का, कोर्ट में जाने का, सारा जो भी खर्चा होगा वो हम आपको देंगे। तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये बात हम पढ़ भी चुके हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पढ़ा था ना हमने कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो यहां जब ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है तो इट डजंट क्वालिफाई टू बी एनफोर्सेबल बाय ए लॉ। तो ठीक है, तो ये केवल किस चीज के लिए होना चाहिए, ये केवल हमारे लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर विच इज बीइंग कवर्ड अंडर द सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हैव ए गुड डे, थैंक यू।